میں 30 سال اس ملک میں یونیورسٹی سے منسلک رہا ہوں. کیسر صاحب مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنا عرصہ یونیورسٹیز میں گزارا ہے. تمام یونیورسٹیز اس ملک کی بڑے بڑے مدرسے ہیں. اس ملک میں اسلام پڑھایا جاتا ہے سائنس کے اندر بھی اور اکنامکس کے اندر بھی اور فزکس کے اندر بھی. تو یہ مجھے نہ کوئی بتائے کہ اس ملک میں کوئی سیکولر تھاٹ پروسیس جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے. پتہ نہیں کیسر صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں. اشرف صاحب، آپ ہی سے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ہم عقل اور وحی کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ظاہر ہے جب ان کے تعلق کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اگر ہمارے سامنے عقل اور وحی کی ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے تو سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ عقل کے کیا معنی ہیں. استعمال تو ہم ویسے کرتے ہیں اور بہت ہی مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، مگر آپ کی نظر میں عقل کی کیا تشریح ہے، کیا تعریف ہے؟ آپ نے وہی کی ڈیفینیشن نہیں پوچھنی. وحی کی بھی آپ بتائیے گا. چلیے، میں نے چونکہ آپ نے شروع کیا تھا کہ وہی اور عقل دونوں کی، تو میں نے کہا شاید دونوں کی. دیکھیے، میں چونکہ دونوں کی تطبیق کے اوپر بات ہو رہی ہے تو مجھے تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے کر ضرور لیں دیجیے دونوں کے حوالے سے. ضرور. پہلی بات یہ کہ جس متن کو ہم وہی قرار دیتے ہیں وہ بیسیکلی ایک گروپ کے لیے یا کسی ایک آپ اسے گروپ کہہ لیجئے، آپ اسے مذہب کہہ لیجئے، آپ اسے ماننے والوں کا ایک گروہ کہہ لیجئے، ان کے لیے وہ وہی ہوتی ہے، لیکن وہ یونیورسل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جس متن کو ہم وہی سمجھتے ہیں، یعنی جی. ہم قرآن کو اگر وہی سمجھتے ہیں، تو دنیا کے 1 ارب ہندوؤں کے لیے وہ وہی نہیں کہلائے گی، یا دنیا کے 2 ارب عیسائی اسے وہی نہیں سمجھیں گے، یا یہودی اسے نہیں سمجھیں گے، یا نارڈک ریلیجن کے لوگ اسے وہی نہیں سمجھیں گے. اسی طرح کے وہ گروہ جو ہیں جن کے اپنے اپنے پاس وحی کی اپنی یا ریولیشن کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے، ضروری نہیں کہ اس سے ہم اتفاق کریں. تو یہ ایک کوئی یونیورسل فیکٹ نہیں ہے، یہ خبر ہے. ہم ایک یقین رکھتے ہیں، یہ لیپ آف فیتھ ہے کہ یہ جو متن ہمارے پاس ہے یہ خدا ہوں کی طرف سے اترا، ہوں کسی ایک شخص پر اترا، اس شخص کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا، اور ہمیں اب اس پر یقین رکھنا ہے اور اسے اپنی بنیاد بنانا ہے. تو یہ گروہ کی حد تک ہے. اچھا، اب وہی جو ہے وہ انسپریشن کے طور پر تو استعمال ہو سکتی ہے، لیکن وہی سسٹم بلڈر نہیں ہوتی. سسٹم بلڈر جو ہے وہ عقل ہی ہوگی. اگر آپ اسلامی فکر یا اسلامی روایت کا بھی جائزہ لیں تو بہت شروع میں یہ بحثیں شروع ہو گئی تھیں. معتزلہ جو ہیں وہ عقل کو ترجیح، تو وہی پہ شاید میں نہیں کہوں گا کہ ترجیح دیتے تھے، لیکن وہ تطبیق کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاں عقل جو ہے وہی متصادم ہوگی وہاں عقل کی بنیاد پہ کوئی تعویل پرووائڈ کرنی پڑے گی، ہوں جس کی بنیاد پہ اور اس وجہ سے بہت انہیں عطاب کا بالکل. سامنا کرنا پڑا. اشاعرہ جو ہیں وہ بالکل اس کے مختلف سمت میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ وہی جو ہے وہ مقدم ہے اور وہ عقل پہ ہمیشہ حاوی رہے گی. ایک وہ اسکول سامنے آیا. پھر کوئی 1100 کے قریب ابن رشد والا جو ہمیں نظر آتا ہے جو فلسفہ، جہاں پہ انہوں نے بھی یہ تطبیق کرنے کی کوشش کی. اگین انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عقل وہی پہ مقدم ہوگی، لیکن تطبیق کرنے کی جو کوشش کی اس پہ بہت سخت عطاب کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے وہی کی جو ہے وہ قطعی تعبیر کو چیلنج کر دیا ہے. اس کی بنا پر انہیں جلاوطنی اختیار کرنی پڑی، کتابیں جلا دی گئیں. فارابی کے ساتھ یہ ہوا، ذکری رازی کے ساتھ یہ ہوا. ہوں تو ہمارے ہاں بڑا سخت اس کے حوالے سے ایک اسلامک جو ہوں اسکول آف تھاٹ، اس کے اندر ہم نے بہت سخت رد عمل دیکھا اس حوالے سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن اگر آپ اسلامی فکر کا جائزہ لیں گے، میں ایک بہت آج کل بہت چونکہ مشہور مسئلہ جو ہے ہمارا بلاسفمی کا چل رہا ہے اس ملک میں. ہوں بلاسفمی کے قوانین موجود ہیں اس ملک میں، قوانین بنائے گئے ہیں. ان قوانین میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں آئی ہیں اور ان قوانین میں سزائیں جو ہیں وہ نرم سے سخت تر کی گئی ہیں. لیکن اگر آپ پوری وحی پڑھ لیجیے، یعنی پورا قرآن پڑھ لیجیے، تو اس میں بلاسفمی بطور جرم ہوں یا بطور سزا کہیں مذکور نہیں ہے. یہ جی ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسلامی جی فکر نے یا روایت نے عقل کا سہارا لے کر کہیں ہوں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو تعزیر کا حصہ بنانا ہے، اس کو حد بنانی ہے، ہوں اس کے اوپر کوئی جرم کے طور پہ اسے ڈکلیئر کرنا ہے، سزا بنانی ہے. ہوں آج کے دن ڈیجیٹل بینکنگ ہے، آج کے دن انسانی حقوق ہیں، اچھا، آج تو کے دن خاص طور پہ عقل کو بھی اگر آپ ڈیفائن کر دیں کہ عقل کو ہم کس طریقے سے پیش کرتے ہیں اور کس دیکھیے، طرح. ہوں عقل کی ڈیفینیشن بڑا ایک مشکل کام ہے. دراصل میں اسے عقل کے بجائے میں اسے شعور اجتماعی کا نام دیتا ہوں. شعور اجتماعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حسیات اور اپنے تجربے اور اپنی آبزرویشن سے سیکھتا ہے ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ایک مسلسل ڈیولپمنٹل پروسیس ہے. عقل کے اندر بہت سے نقائص ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کی پازیٹیو چیز ہے، یہ اس کی نیگیٹو چیز نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی چیز میں نقص ہو اور وہ یہ تسلیم کرے کہ اس میں نقص ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نقص کو دور کر سکتی ہے، اس سے سیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی کو ایبسولوٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور اس میں ہم نقص جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کرتے، تو پھر ہمیں ہر حال میں اس کی تعویل دینی پڑتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں رہتی. جی. تو عقل یا انسانی شعور اجتماعی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ارتقائی پروسیس ہے جس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور اسی ٹھیک. ارتقائی پروسیس کے ذریعے
जो हमें साइंटिफिक प्रोग्रेस नज़र आती ठीक है, है। जो हमें फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस नज़र आती है, वो ठीक सब है। अक़ल का ही नतीजा है। ठीक है। कैसर साहब, हम अकल के हवाले से जैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमारे सामने अकल ज़ाहिर है इर्तिका की बात करती है, प्रोग्रेस की बात करती है, अपने आप को बेहतर बनाने की बात करती है, तरक्की की बात करती है। बट क्या वही के हवाले से भी हमारे ये तसव्वुरात हैं? आम तौर पे वही के हवाले से ये कहा जाता है कि वही जमूद है और प्रोग्रेस की बात नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में किसी भी क्वेश्चन को अगर हम उसके जो जस्ट फ्रेम है हुँ, उसके अंदर हम एंटरटेन ना करें तो फिर हर इंसान की अपनी जहनी इख्तरा हो सकती है कि वो उसको उस तरफ ले जाए या उस तरफ ले जाए। तो वही और अकल की अगर हमने बात करनी है तो फिर हम उसको एक इस्लामिक फ्रेमवर्क में देखेंगे और पहला सवाल ये उठाएंगे कि क्या वही और अकल दो कंपीटिंग एंटिटीज़ हैं या ये एक दूसरे के साथ कोई इनका मुकाबला नहीं है, मुवाजना नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट इस्लामिक व्यू करते तो हैं। यही है कि वही वही और अकल दो कोई मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। यानी मुख्तलिफ से मुराद ये कि दो कंपीटिंग एंटिटी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है वही अल्लाह की तरफ से आती है, अकल जो है वो इंसान की है, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है कि एक वही होगी और एक अकल होगी। हाँ, कंपटीशन वहाँ पे बन जाता है जहाँ कोई चीज़ आप अपने माशरे के मुताबिक हुँ, जो आपने एक फ़हम डेवलप किया है, वो आप एक देखते हैं कि वही के जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ डिफरेंट है और आपकी अकल कुछ आपको और बता रही है, तो वहाँ पे हम अपनी अकल को कंसीड करें। ये हमारे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। यही मुतज़िला को भी प्रॉब्लम हमारी हुआ था अकल, कि कैसर उन्होंने साहब माज़रत, इसमें एक हमारी अकल से क्या मुराद है? यानी ये अक्ल सली इंसान की हम बात करते हैं ना, बनी नौ इंसान की जब हम बात करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो जो वही का मामला है वो इस तरह से तो नहीं रखा कि ये एक ग्रुप है, ये मेरे मानने वाले हैं और मैं इनको बस हुक्म दे रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो इंसान को बहजत मजमूई एड्रेस किया है सही। कि वो जो अकल रखते हैं या तुम्हें ज़मीन पे खलीफा बनाया जाएगा, उसमें ज़मीन पे खलीफा बना के अब हमारी अकल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुँ, वही कनेक्टिविटी देती है कि ये अकल है, तुम इसके खालिक नहीं हो। कोई ऐसा न्यूरो साइंटिफिक, कोई ऐसा बायोलॉजिकल, हुँ, कोई ऐसा साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है जिससे हम अकल की तशरीह कर सकें कि ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, हमारे दिमाग में कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं, क्या वो अकल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारी कोग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, क्या उनका ताल्लुक जो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं यानी कि जो हमारे दिमाग के सेल हैं उसके साथ हैं, या ये एक उससे मावरा चीज़ है। आई मीन जो इंसान का शऊर है ये कहाँ पे रहता है। आई मीन दोज आर वंडरफुल क्वेश्चंस, लेकिन हमारे पास कोई आंसर नहीं है सिवाय इसके कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वही आपको ये बताती है कि इन चीज़ों का खालिक कोई एक ऐसा है जो ये चाहता है कि आप अपनी अकल से उसकी तरफ रुजू करें। अब आप दुनिया में आके करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए एक मामला रखा हुआ है, लेकिन ठीक। ये कोई कंपीटिंग एंटिटीज़ नहीं है। ठीक है। हाँ, अच्छा, जहाँ पे जस्ट टू आपको बी लगता क्लियर है कि कैसर साहब, कि आप ये कह रहे हैं कि अक्ल और वही में ज़ाहिरी तारुज़ दिखेगा, तो उसके अंदर वही को तरजीह दी जाएगी और अक़ली तशरीह की, अक़ली तावील को तरजीह नहीं दी जाएगी? ज़िला से भी गलती हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो एक सेकुलर कंटिजेंट है वो मुतज़िला को बहुत ज़्यादा फेवर करता है कि वो बड़े हुँ, अकली लोग थे, हुँ, ये थे, वो थे। और वो एक दहशतगर्दों का एक ग्रोह था, आप कह लें कि दाइश से करीब करीब लोग थे और वो भी अकल को बुनियादी तौर पे प्रेफर नहीं करते थे, ये बात भी जहन में रखें। चलो, क्योंकि अकल के प्रेफरेंस का मतलब तो ये होता है कि भाई मेरी अकल में ये चीज़ आई है, आपने इसकी तशरीह अपनी अकल के मुताबिक डिफरेंट ठीक, की है तो वो हो सकती है। ठीक। दैट बात इज़ वाज़ेह हो क्वाइट अ गई है। पॉसिबिलिटी। ठीक। कैसर साहब, एक छोटा-सा लेकिन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। एक और ज़हन में सवाल आ रहा है आपकी गुफ्तगू से। नाज़रीन, एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम अक़ल और वही के दरमियान क्या ताल्लुक़ है इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और कुरान में अक़ल के ऊपर बार बार ज़िक्र हुआ है, अक़ल की ताकीद की गई है, अक़ल को इस्तेमाल करने के हवाले से, गौर व फ़िक्र के हवाले से। और अल्लाह ताला ने कुरान में जो मुख्तलिफ़ निशानियाँ ज़िक्र की हैं, यानी जिस चीज़ अब पूरी खिलकत को निशानियों के तौर पे पेश किया है और कहा है कि गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा खुदा इन सब चीज़ों के पीछे कोई है जो इस पूरे निज़ाम को चला रहा है। और ख़ुद भी अपने लिए हकीम का बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अज़ीज़ुल हकीम, ये इस्तिलाह बार बार कुरान के अंदर आई है। तो वो क्या एग्जैक्टली वही और अकल का ताल्लुक़ इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लाम के स्कॉलर जनाब अल्लामा शेख दिलशाद मेहदवी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, इस्लामिक हिस्ट्री में एक थियोलॉजी, एक पूरी एक इल्मी
آپ کے پاس رہی ہے اور پھر ہمارے پاس فلاسفہ بھی رہے ہیں، مختلف ہمارے پاس اوپینینس اس حوالے سے آتے رہے ہیں، تو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو صحیح تشریح عقل اور وحی کی اور ان کے درمیان تعلق کی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بہت ہی عمدہ سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور پروردگار عالم نے اور وحی کی جو ملموس اور وحی کی جو حقیقت اور وحی کی جو یعنی ہمارے سامنے جو ہاتھوں میں صورت ہے وہ ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید بار بار یہ پکارتا ہوا کہتا ہے کہ افلا تدبرون الآیات، تم اللہ کی آیتوں میں کیوں نہیں تدبر کرتے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، جہنمی یہ کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے اور غور و فکر کر لیتے، عقل کا استعمال کر لیتے تو ہم جہنم میں نہ جاتے۔ یعنی قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب عقل کا استعمال نہ ہو تو انسان جہنم کی طرف جاتا ہے۔ سب سے بنیادی طور پر جو بیسیکلی طور پر سوال ہونا چاہیے وہ عقل کیا ہے، جو آپ نے پوچھا بھی۔ اس عقل کا تعلق انسان سے، آپ کسی جانور کے بارے میں نہیں پوچھتے، کسی حیوان کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ اس کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ عقل سے آ رہی ہے۔ انسان کے بارے میں جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر انسان کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ انسان کن اجزاء پر اور کن صورتوں پر مرکب ہے، اس کے وجود میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ اس کے وجود میں نفس بھی ہے، اس کے وجود میں روح بھی ہے، اس کے وجود میں قلب بھی ہے، اس کے وجود میں عقل بھی ہے۔ یہ مختلف مراحل اور درجات ہیں جو انسانی وجود کو ترکیب دیتے ہیں۔ جب ان تمام اجزاء کو انسان سمجھتا ہے تو پھر اسے یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ نفس کسے کہتے ہیں، قلب کسے کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں، آتے ہیں عقل کی طرف۔ عقل جو ہے، کیونکہ انسان جو بھی اعمال انجام دیتا ہے اس کی بیس نفس پر ہے، اس کے درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ کبھی وہ درجہ قلب کی صورت میں آتا ہے، کبھی وہ درجہ روح کی صورت میں آتا ہے، کبھی وہ درجہ عقل کی صورت میں آتا ہے۔ نفس میں ایک قوت ہے جسے قوت مدرکہ کہتے ہیں، اور وہ قوت بھی پھر 4 مرحلوں میں کام کرتی ہے۔ کبھی وہ قوت خیال ہوتی ہے، کبھی وہ قوت وہم ہوتی ہے، کبھی وہ قوت فکر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے وہمیات کو عقل سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ عقل نہیں ہوتی۔ خیال الگ چیز ہے، وہم الگ چیز ہے، فکر الگ چیز ہے۔ عقل کی پہلی حرکت کو قرآن مجید یا روایات فکر کا عنوان دیتی ہیں، اور اسی لیے آپ جائیے مختلف جگہوں پر، سورہ زمر میں خصوصاً ارشاد رب العزت ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ جو لوگ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں عقل کی کاربردی سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی عقل کرتا کیا ہے؟ عقل صحیح اور غلط میں تمیز کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ عقل اینالائز کرتا ہے، عقل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ درست ہے۔ جیسے ہم ڈیٹیکٹر گیٹ لگا دیتے ہیں تو وہ غلط اور صحیح آدمی کو آنے اور جانے سے روک دیتی ہے۔ عقل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اینالائز کرتا ہے، وہ برے اور بھلے کی ہمیں اچھا علامہ صاحب، سمجھ اس کے اوپر ایک، کیونکہ ہماری ایک سمت میں ڈسکشن جاری ہے، آپ نے ظاہر ہے عقل کا ڈیفائن کر دیا، وحی کو ڈیفائن کر دیا۔ نہیں، وحی کو ابھی میں نے ڈیفائن نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب، عام طور پہ ہم قرآن کی تشریحات کے اوپر بھی مسلمانوں کا اختلاف رہتا ہے، تو اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی آیت ہے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے ہم کسی کوئی اوپینین رکھتے ہیں اور قرآن کی جو ظاہری انٹرپریٹیشن ہے وہ کوئی اور ہمیں جو مطلب بتا رہی ہے، تو کیا یہاں پر ہم عقلی تشریح اور تعویل کو ترجیح دیں گے یا قرآن کی آیت کی جو ظاہر میننگ ہے اس کو ترجیح دیں گے؟ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عقل کا دائرہ کار کیا ہے۔ دیکھیے، عقل جو ہے وہ اجمال کو درک کرتی ہے۔ عقل جیسے پروردگار عالم نے ایک اور بھی لفظ ہے
عقل ہے، فطرت ہے، نفس ہے، روح ہے، قلب ہے، جب تک آپ ان پانچوں چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، حقیقت انسان کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ پروردگار عالم نے فطرت انسان میں پرستش رکھی ہے، پروردگار عالم نے فطرت انسان میں جمالیات کا ذوق رکھا ہے، پروردگار عالم نے فطرت انسان میں ریسرچ کا، تحقیق کا شوق رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں عقل کے ذیل میں، جی مثلاً برائی کیا ہے، جی اچھائی کیا ہے، اس چیز کو یعنی برائی برائی ہے، اچھائی اچھائی ہے، ٹھیک اس چیز کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا صحیح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ صحیح عقل کلی چیزوں کو درک کرے گی، اجمالی چیزوں کو درک کرے گی۔ اب وہی کی کب ضرورت پڑے گی؟ مثلا حسن قبح عقلی کا مطلب کیا ہے؟ قتل بری چیز ہے، جی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اچھی ٹھیک چیز ہے۔ اب یہ عقل اجمالی طور پر سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یعنی آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جزیات کے اوپر عقل حکم نہیں لگاتی ہے۔ اچھا ہاں حاشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں۔ حاشر صاحب ظاہر ہے جب اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو جزیات اور یونیورسلز کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے، تو جزیات کے حوالے سے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ عقل ہمیں وہاں پہ رہنمائی نہیں کرتی، وہاں پر جزیات میں خاص طور پہ ہمیں وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وحی کا جو تعین کر رہے ہوتے ہیں مختلف مکاتب فکر یعنی مختلف مذاہب میں، ظاہر ہے ہر جو مذہب ہے وہ اپنی ریولیشن کو یعنی اپنی کتاب کو خدا کی کتاب ہی پروف کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو عقل کی بنیاد کے اوپر ہی اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کس کا آرگومنٹ صحیح ہے کس کا آرگومنٹ صحیح نہیں ہے۔ تو جب ہم وحی کو ایویلویٹ کرنے کے لیے عقل کا سہارا لے رہے ہیں تو یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد یا کرسچینٹی میں داخل ہونے کے بعد پھر ہم کیا عقل کا سہارا چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر میری بات مکمل ہو جاتی تو جی بہتر ہو جی جاتا۔ علامہ صاحب، جی حاشر صاحب جی گفتگو جی کر لیں پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں تاکہ گفتگو ایک سمت میں چلے۔ جی حاشر اچھا صاحب۔ دیکھیے ولید، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا کانٹیکسٹ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ اگر تو کانٹیکسٹ صرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی فکر کی تاریخ کیا ہے اور اس کے اندر وحی کی کنٹریبیوشن کیا ہے، جس متن کو ہم وحی کہتے ہیں اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور عقلی کنٹریبیوشن کیا ہے، تو ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کی بحث ہوگی۔ اور اگر ہم وحی کو ایگزامن کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی بحث ہو جائے گی۔ دیکھیے جہاں تک وحی کو ایگزامن کرنے کی بات ہے، چونکہ اب آپ سوال جو ہے نا وہ اس طرف چلے گئے ہیں، یہ ہمارا بنیادی موضوع شاید نہیں تھا، لیکن میں نے کہا وحی کو ایگزامن کرنا یہ بنیادی طور پہ خبر کا معاملہ ہے نا، کہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ ایک وحی ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کا ہمارے پاس کوئی حصی تو ہمارے پاس ثبوت حاشر صاحب میرا ایگزیکٹ سوال یہ ہے کہ عقل کے معیارات کے اوپر ہی تولیں گے نا ہم، یعنی ہمارے سامنے کوئی بھی چیز سامنے آئے گی اس کو عقل کی ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن وحی ہے، ختم ہو گئی بات، یہ لیپ آف فیتھ ہے۔ اگر آپ نہیں مگر وہ کرسچن ہیں دلیل آپ کی بنیاد پہ مانیں گے نا، یعنی بنا دلیل وہ عقل کی بنیاد پہ آپ نہیں مانتے۔ ہم میں سے جب آپ کہتے ہیں نا اسلام میں داخل ہونے والے، تو اس وقت جو پاکستان کے اندر اگر 24 کروڑ مسلمان ہیں تو اس میں سے کوئی ایسے مسلمان شاید 24 ہوں گے جو اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے۔ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں۔ آپ ایک مسلمان ٹھیک ہے، گھر میں پیدا ہوئے تو آپ اس بات میں درست ہے۔ مسلمان ہو، سیدھی سی بات ہے۔ عقل کے اوپر اگر آپ پرکھنا شروع کریں گے تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ مطلب میں غامدی صاحب کا بھی 2 دن پہلے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ انسان کی ٹیڑھ ہے کہ وہ عقل پہ ریشنلائز کرنے کی کوشش کرے وحی کو، کیونکہ وحی کو ریشنلائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں جو کہ میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی عقل سے ماورا ہے، آپ کی عقل بہت محدود ہے، اس میں وہ چیز نہیں آ سکتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر 7 ارب انسان ہیں تو ان سب کے پاس میرے جیسا ہی دماغ ہے نا۔ ہو سکتا ہے کسی کے تجربے زیادہ ہوں، کسی کی تعلیم زیادہ ہو، وہ الگ بات ہے، بٹ دماغ تو وہی ہے۔ آپ انسان کے دماغ کو محدود کہہ رہے ہیں، تو جو چیز میرے دماغ میں نہیں آ سکتی وہ کسی اور کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو پھر اگر کسی اور کے دماغ میں آ گئی ہے یا وہ اس حقیقت تک پہنچ گیا ہے تو میں وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ مجھ پر یہ کیوں آپ فتویٰ لگا رہے ہیں؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقل کو جب استعمال کرتے ہیں تو ہم خود سے طے کر لیتے ہیں کہ عقل کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ یہ تحدید جو مذہبی حلقے طے کر لیتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ طے کرتا ہے کہ عقل کرو، قرآن فکر کی دعوت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فرض کر لیجئے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے عقل کا استعمال کیا، میں نے فکر کا استعمال کیا، میں نے تجربے کا استعمال کیا اور اس نتیجے پہنچوں کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں فلاں فلاں چیز غلط ہے، تو اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی لوگ ہوں گے اس تنقیدی سوچ کے اوپر وہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ آپ کی حد ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے، اگر آپ کی عقل آپ کو خدا تک نہیں پہنچا رہی، اگر آپ کی عقل آپ کو خدا کا انکار کرنے پہ مجبور کر رہی ہے تو پھر یہ عقل نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے کہا یہ وہم ہے۔ اب مسئلہ یہ نا کہ بہت کھلا میدان مل جاتا ہے۔ اگر میں اس کے اوپر کوئی تنقیدی بات کرنا چاہوں یا تنقیدی فکر رکھنا چاہوں تو اس ملک میں رہتے ہوئے رکھ بھی نہیں سکتا پوری طرح۔ مطلب آپ کے ایک پارٹیسپینٹس ہیں، یہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ معتزلہ کو دہشت گرد کہہ دیں،
मगर ये बेसिकली जो प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं ताकि खुल के डायलॉग और डिस्कशन हो। बिल्कुल ना करें, मैं नहीं कह सकता। मैं तो बहुत छोटी सी बात भी कोई दाएं बाएं कहूंगा तो सुबह FIR होगी, मैं जेल में होऊंगा। तो मुझे तो एक लफ्ज बोलने से पहले 100 दफा सोचना पड़ता है कि मैं क्या, मेरे पास वो इक्वल फुटिंग पे इक्वल ग्राउंड नहीं है। इस मुल्क में अच्छा मुकालमा इसलिए नहीं हो सकता कि आपने, अब इसकी वजह डर है, इसकी वजह खौफ है, मुझे नहीं पता, बट आपने ना ये SHO को इख्तियारात दिए हुए इस मुल्क में कि क्या बात हो सकती है और क्या बात नहीं हो सकती। मसला ये है, इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इस मुल्क में अच्छे फोरम, पब्लिक फोरम्स के ऊपर सेहतमंदाना डायलॉग नहीं हो पाता इन्हीं वजूहात की बिना पर, क्योंकि आपने फैसला कर लिया है कि अकल जो है वो वही अकल है जो कि हमारे दिए हुए तयशुदा मायारात को तस्लीम करेगी। अगर उससे वो अलग जाती है तो वो अकल नहीं है, वो दहशतगर्दी है। वो अकल नहीं है, वो वहम है। वो अकल नहीं है, वो खराबी है। वो अकल नहीं है, वो माशरे को ख़राब करने की साजिश है। फलां 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 फलां, वो बात आपको करने की खुली आज़ादी है, आप कर सकते हैं। मैं ये बात नहीं कर सकता किसी और के बारे में, मैं ये बात अच्छा, तो अच्छे नुकात आपकी तरफ से आए। कैसर अहमद राजा साहब जी, अलामा साहब जी। जी, आशिर साहब ने बहुत ही उम्दा और अच्छी बात कही। क्यों नहीं सेहतमंदाना मुबाहिस और क्यों नहीं सेहतमंदाना सवालात हो सकते हैं। आप बिल्कुल एतराज़ कीजिए, कुरान मजीद पर एतराज़ कीजिए, सवालात उठाइए। मुझे ये आयत समझ में नहीं आती, ठीक है। एक मरतबा आप कहते हैं मुझे समझ में नहीं आती, एक मरतबा कहते हैं ये तो कुरान ही नहीं है। इन दोनों में फ़र्क पाया जाता है। मसलन वहम किसे कहते हैं? एक आदमी लकड़ी को पानी में देखता है तो उसे लकड़ी टेढ़ी नज़र आती है, जहाज़ दूर से देखता है उसे छोटा नज़र आता है। अगर वो ये कहे कि ये जहाज़ है ही छोटा तो हम उसे समझाएंगे कि ये वहम है, ये ख़याल है। ये अक़ल के तजुर्बियात के ज़रिए से साबित हो जाएगा। देखिए, एक मरतबा हकीकी फ़िक्र है जिसको आप तमाम उसूलों पर, जिस तरीके से आप कोई भी तहकीक तमाम उसूलों को बरूए कार लाकर नतीजे पर पहुँचते हैं। अक़ल के भी अपने पूरी मंतिक मौजूद है, यानी अक़ली मुक़द्दिमात मौजूद है। उन मुक़द्दिमात से गुज़र कर आपको चीज़ समझनी होगी, फिर वहाँ पर ये पेश किया जाएगा कि ये वहम है, ये ख़याल है, ये फ़िक्र है, दुरुस्त फ़िक्र क्या है, गलत फ़िक्र क्या है। कोई एतराज़ नहीं, इस्लाम एतराज़ नहीं करता है इस बात पे। कोई आकर मुझे वैसे आपने बहुत खूब पॉइंट इसमें एक रेस किया है, वो ये कि आप ऑब्जेक्टिविटी, अकल की ऑब्जेक्टिविटी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कोई ये एक अहम पॉइंट है। कैसर अहमद राजा साहब से भी मैं रिस्पांस चाहता हूं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अलामा साहब, फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आपसे भी रिस्पांस लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मुल्क के नामवर रिसर्च स्कॉलर जनाब कैसर अहमद राजा साहब मौजूद हैं। कैसर साहब, हाशिर साहब ने जो ये बात कही है कि अब मुसलमान पाकिस्तान में अक्सरियत जो मुसलमान हैं वो सिर्फ इसलिए मुसलमान है, ज़ाहिर है जो कि वो मुसलमान घरानों में पैदा हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं है, ये एक हकीकत है। मगर क्या इस्लाम इस बात को कबूल करता है कि मुसलमान महज सिर्फ इस वजह से मुसलमान हो जाएँ कि क्योंकि वो मुसलमान घरानों में पैदा हो जाएँ और वो अक़ल से तयन ना करें अपने मकतब फ़िक्र का, अक़ल से और तालीम से, इल्म से, इस्तदलाल से अपने मकतब फ़िक्र, अपने मज़हब का यानी कोई भी तयन ना करें और महज वालिदैन के मज़हब के ऊपर हो जाएं? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमें आमतौर पे हमारे मुबाहिस में मिलते हैं कि सर्टन क्लीशेज़ हैं जिसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि 5-7 बस वो कुछ बातें बिल्कुल ही अवामी लेवल की, और उसी पे ही हम कोशिश करते हैं कि यानी कि पॉइंट स्कोरिंग सीम्स टू बी मोर इम्पोर्टेंट दैन मेकिंग एन इंटेलेक्चुअल पॉइंट। अब ये जो आइडिया है कि वो पाकिस्तान में तो सारे वो पैदा हो भाई, ये आर्गूमेंट बड़ा अच्छा होगा, पर एट द सेम टाइम दुनिया में नेट रिवर्जन्स के हवाले से सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब भी इस्लाम ही है, और उसमें तो जो एथियस्ट हैं वो भी मुसलमान होते हैं। मेरे अपने स्टूडियो में अभी कुछ दिन पहले ही एक फ़िलिपीनी खातून आई थी, इस्लाम के हवाले से कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी मुसलमान हुई। खैर, मैं एनेक्डोटल एविडेंस की तरफ में ज़्यादा नहीं मैं इसरार करूँगा उस पर, लेकिन दुनिया में नेट रिवर्जन्स के हवाले से भी, गज़ा की जंग के हवाले से आप देखें कि जो अमेरिकन मीडिया है उसको भी दिफा में आना पड़ा अपने सिस्टम्स के, कि जितनी तेज़ी से वहाँ से लोग मुसलमान होना शुरू हुए। यूके में देखें, यूरोप में देखें, तो अगर ये आर्गूमेंट है कि आप मुसलमानों के घर पैदा मुसलमान हैं, तो आप क्या करेंगे उन करोड़ों लोगों का कि जो दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, लाखों की तादाद में हर साल में होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ डीप पॉइंट।
रही बात ये एक और दूसरी एक बात कि हमारे यहाँ क्यों अकली गुफ्तगू या बेहतर गुफ्तगू नहीं हो सकती, और उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक अकली दलील लेके ना आए, बल्कि मुसलसल सिस्टम के ऊपर कब्ज़ा करने के बावजूद एक मुसलसल विक्टिम कार्ड हो कि हम तो ये बात खुल के नहीं कर सकते, हम तो वो बात खुल के नहीं कर सकते। ओ भाई, इसी मुल्क के अंदर आपने आपसे मुराद जो आपके पार्टिसिपेंट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, यानी कि जो सेकुलर लोग माइंड के लोग जो हैं, ब्यूरोक्रेसी पे आपने कब्ज़ा कर लिया, अदालतों पे आपने कब्ज़ा कर लिया, एकेडेमिया पे आपने कब्ज़ा कर लिया, जहाँ पे कार्ल मार्क्स को पढ़ाया जा सकता है, एडम स्मिथ को पढ़ाया जा सकता है, शेबानी को नहीं पढ़ाया जा सकता, जो कि उनसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, एटलीस्ट उनके पार के थे। एट द सेम टाइम इस्लाम की थ्योरी क्या है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन हम जो और इकोनॉमी के मॉडल हैं और जो सियासी मॉडल्स हैं वो हम पढ़ा सकते हैं। मीडिया में हराम कारी इस तरह से ग्लोरीफाई करना कि एक आदमी की एक औरत के साथ इश्क है और साथ उस औरत की माँ के साथ भी इश्क है, ये सारा खुलेआम हो रहा है, बड़े धड़ल्ले के साथ हो रहा है। कोई यहाँ पे यानी अगर कोई विक्टिम है तो वो इस मुल्क की मेजॉरिटी है, वो हम जैसे लोग हैं कि हम पे अब जो सिस्टमेटिकली जो इम्पोजिशन की जा रही है, सेकुलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान की, वी शुड बी रेजिस्टिंग दैट। बाकी इंडिविजुअली फ़लाँ जगह ऐसा हो गया, फ़लाँ जगह ऐसा हो गया, भाई वो आप जिन मुल्कों को ग्लोरीफाई करते हैं वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा होता है, वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है, बट एक फिनोमेना है जो दुनिया में पाया जाता है। तो आप डिसएग्री करें, अकली बुनियादों पे करें। आप मुतज़िला को मिसाल के तौर पे अगर ये पेश कर देना कि देखें वो तो लोग थे, वो बड़ी अक्ल वाले थे, तो अकल का जो प्रोपोनेंट है, विदाउट इवन डिफाइनिंग व्हाट इट इज़, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे को अपनी अकल इस्तेमाल करने दें। लेकिन मुतज़िला वो लोग हैं जो इमाम अहमद बिन हम्बल को हर रोज़ जेल से निकाल के कोड़े मार रहे हैं और हर रोज़ फिर कोड़े मारने के बाद जेल में डाल रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसके अंदर आप जब तक उनसे एग्री नहीं करते तब तक आपको सज़ा मिलेगी, वो जुर्माने से लेकर सज़ाए मौत तक कुछ भी हो सकती है। यानी जो थोड़ा सा वक्त उनके पास आया, उन्होंने अपनी अकल को लोगों पे ऐसे इम्पोज किया। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अकल का अगर आप उसके बहुत ज़्यादा आप उसके प्रोपोनेंट तो आप दूसरों को अकल इस्तेमाल करने दें, लेकिन अगर आपने कानून ये बना लिया है कि जो हम कह रहे हैं यही हरफ आखिर है और इससे इख्तलाफ करने के बाद आपको कोड़े भी पड़ेंगे, आपको सज़ाए मौत भी होगी, आपको जुर्माना भी होगा वगैरह वगैरह, पूरा ये नहीं कि उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था, मिनहा सिस्टम, कभी आप उसको स्टडी करें तो ये कोई अकल जी, नहीं है, ये इम्पोजिशन है, ये ठीक, दहशतगर्दी है। और आज के ज़माने में पाकिस्तान के सेकुलर्स ठीक, मतलब अगर वो इधर होते मुतज़िला वाले तो सबसे जी, ज़्यादा जो ओपन जो ज़दोकोब हो रहा होता वो पाकिस्तान के सेकुलर्स का हो रहा होता। बट सही, अगेन द पॉइंट इज वी डोंट लुक एट द हिस्ट्री, वी जस्ट लुक एट ठीक। सर्टेन। हाशिर साहब, ठीक है, आप एक ज़ाहिर पाँच है सात बातें हो कैसर गई अहमद हैं। राजा साहब एक ओपिनियन दे रहे हैं और आपका जो ओपिनियन उसके हवाले से आया वो बिल्कुल एक अपोजिट था। तो क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं जो कैसर अहमद राजा ने रिस्पॉन्स किया है आपके जवाब में, सवाल में? वली साहब देखिए, मेरा एक मसला है। मैं ये बड़ी मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस मुल्क में मुबाहिसा नहीं करना चाहिए, तो मैं मुबाहिसा नहीं करना चाहता। कैसर साहब की राय है और मेरी राय है। कैसर साहब को भी मेरी राय से मुत्तफिक होना या इवन उसका एहतराम करने की भी ज़रूरत नहीं, वो अपनी राय रख सकते हैं, मैं अपनी राय रख दूंगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे शायद यही एक मुनासिब तर्ज अमल रहेगा। जो बात उन्होंने कही, सही, मैं उससे बिल्कुल उनकी तमाम बातों से गैर मुत्तफिक हूँ। मैं 30 साल इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ से मुंसलिक रहा हूँ। कैसर साहब, मुझे नहीं पता उन्होंने कितना अर्सा यूनिवर्सिटीज़ में गुजारा है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस मुल्क की बड़े बड़े मदरसे हैं। इस मुल्क में इस्लाम पढ़ाया जाता है, साइंस के अंदर भी और इकोनॉमिक्स के अंदर भी और फिज़िक्स के अंदर भी। तो ये मुझे ना कोई बताए कि इस मुल्क में कोई सेकुलर थॉट प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। पता नहीं कैसर साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं। बहरहाल मेरा 30 साल का ताल्लुक़ है हायर एजुकेशन के साथ और तमाम तरह की एजुकेशन के साथ, स्कूल से लेकर उन तक जितने प्रोजेक्ट्स मेरे शायद क्रेडिट पे होंगे, मुश्किल है कम लोगों के इस मुल्क में होंगे। तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इस मुल्क में जूरिस्प्रूडेंस जो है, इस मुल्क में जो थॉट प्रोसेस है, इस मुल्क में जो निसाब है, इस मुल्क में जो फिक्री धारा है, वो तमाम का तमाम इस्लामी है। सही या गलत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन ये कहना कि वो इस्लामी नहीं है, वो पता नहीं कोई सेकुलर धारा चल रहा है, तो खुदा जाने वो ये कोई किसी यूटोपियन बात है। तो मैं दूसरी बात ये कि मैंने तो मुतज़िला को ग्लोरीफाई नहीं किया। मैं तो बिल्कुल मुतज़िला को ग्लोरीफाई नहीं करता। मैंने कहीं ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा मुतज़िला भी जो है वो करते ये थे कि वो अक्ल को वही से मुकद्दम समझने का उनका बुनियादी मकसद ये था कि तावील बनाएंगे। तो वो भी तावील बनाते थे, कोई ऐसी बड़ा कारनामा वो भी नहीं करते थे। डायरेक्ट चैलेंज जो है वो किसी ने नहीं किया। अब अल्लामा साहब ने एक बात की, मैं सिर्फ बातों के जवाब रख रहा हूँ यहाँ सही, पर। बहस करना मेरी बात से बिल्कुल आप लोगों का मुत्तफिक होना सही, राय साहब का, अल्लामा साहब का जरूरी नहीं। अल्लामा साहब ने कहा कि आप आए, आप कुरान की हो सकता है एक आयत को आप गलत समझो। अच्छा, ये मसला जब शुरू यहाँ से होता है ना, क्या अल्लामा साहब
कह सकते हैं, या कोई भी कह सकता है, इस मुल्क में कोई भी कह सकता है कि कुरान में गलती का इम्कान है, ज़ाहिर है कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आपने जब उसको वही तस्लीम कर लिया और आपने आपको मुसलमान तस्लीम कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे कतई सच्चाई तस्लीम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी सवाल उठाऊंगा, या मेरे जैसा, या मैं ना भी उठाऊं, कोई और भी शख्स सवाल उठाएगा, तो आपने तावील बनाकर किसी ना किसी तरह उस सवाल का कोई जवाब निकालना है। आप उसमें गलती का इम्कान जब नहीं तय करें, तो इसका मतलब है सेहतमंदाना सवाल, या उस हद तक सवाल जहाँ पे आप ये तय कर लें कि यार इस दायरे से बाहर भी बात हो सकती है, तो वो दायरा खींच दिया गया है। उस दायरे से बाहर बात हो नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। मजहबी फिक्र में इसकी इजाज़त नहीं है। उसकी इजाज़त इसलिए नहीं है कि आप वही को कतई सच्चाई समझते हैं, और ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि वही की सच्चाई के ऊपर सवाल उठ सके। हाँ, जुज़ियात पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन जुज़ियात में भी आपको ये बताया जाएगा कि आपकी समझ में गलती है, असल में बात इस तरह हो रही है। और 1400 साल से हम 14,000 तफसीर इसीलिए लिख रहे हैं कि हम लोगों को यही नहीं समझा सके अभी तक कि समझ में क्या क्या गलतियां हैं, और 1 से लेकर 70 फिरके भी हमने इसीलिए बना लिए हैं कि वो जो आपस में मुल्क के मुल्क लड़ रहे हैं, इस्लामी फिक्र तुम्हारी कुछ और है और मेरी फिक्र कुछ और है, और मेरी ठीक है और तुम्हारी गलत है, तो मसला यहाँ पर आ जाता है। सही। कैसर साहब, आप कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं? जी जी ज़रूर। मैं देखिए, गुजारिश ये है कि अगर हमारी एजुकेशन जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे आई एम वेरी श्योर कि वहाँ पे जो रक्स हो रहा होता है और जो हुल्लड़बाजी हो रही होती है, आइस और ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी फिर इस्लामी ही लगती होंगी। ऐसे ही मीडिया का मैंने हवाला दिया कि वहाँ पे जो हुल्लड़बाजी, नाच नंग धड़ंग हो रहा है, शायद वो भी इबादत ही लगता होगा। शायद फिर हमारी इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग एक तरह की नहीं है। पर आई वांट टू गो मच डीपर देन दिस शैलो पॉइंट्स। को देखिए, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, वही और अकल के बारे में हमने कितनी बातें की हैं। वो सारे का सारा प्रोग्राम इससे मुड़ गया कि वो तुम मुसलमान लोग तो वही को ये समझते हो, वो समझते हो, ये वगैरह। लुक, देयर इज़ एन इंटेलेक्चुअल डेफिनेशन कि जो रेवलेशन है, डिवाइन रेवलेशन, वो क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रैशनैलिटी है वो क्या है। व्हाई नॉट कम एंड हैव सम फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, कि एक फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हो कि वही का तारीख़ इंसानी में क्या मकाम है। अकल उसके कोई इस्लामी जो वर्ल्ड व्यू है उसके मुताबिक उसके साथ कोई कंपीटिंग एंटिटी नहीं है, बल्कि अकल आपको ये बताती है कि जब आप अकल यानी आप इस्तेमाल करते हैं और आप ये देखते हैं कि जब आप फितरत के कवानीन से हटते हैं तो आपके पास आपके पल्ले क्या रह जाता है। कम्युनिस्ट ने तजर्बा किया, आप अकली बुनियादों पे देखें कि कम्युनिस्ट ने ये तजर्बा किया, मुल्कों के मुल्क तबाह कर दिए, मिलियंस के हिसाब से उन्होंने लोगों को मार दिया सिर्फ डिसएग्री करने पे या अपनी अकल इस्तेमाल करने की वजह से। ऐसे ऐसे फेमिन्स क्रिएट हुए कि जो तबाही उन्होंने मचाई है, जिस तरह से मुसलमानों और क्रिश्चियंस का कत्लेआम किया है। अब आप अकली बुनियादों पे देखें कि वो सिस्टम नाकाम है। उसके मुकाबले में दूसरा बड़ा सिस्टम था फैशिज्म का, वो दूसरी जंग अज़ीम में नाकाम हो गया। मुसोलिनी, हिटलर वगैरह सारे ख़त्म हो गए कि वो सस्टेनेबल सिस्टम नहीं थे। तीसरा बड़ा सिस्टम जो इंसानों ने बनाया है प्योरली अपनी अकल को इस्तेमाल करके फितरत से हट के, वो लिबरलिज्म है। 2.1 की जो फर्टिलिटी रेट है, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, उनके इंडिविजुअलिज्म की वजह से वो सारा ख़त्म हो गया है। वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। वहाँ पे आज जो फाइनेंशियल मॉडल लेके आए, वहाँ पे दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है कि हम जनरेशनल लेवल पे कर्जा विरासत में छोड़ के जा रहे हैं। पहले इंडिविजुअल लेवल पे करते थे। वी कैन सी ऑल दीज थिंग्स। दुनिया में जो जंगें हो रही हैं उसके पीछे लिबरल्स कितने, ये अकली तौर पे आप देखें फिर आपको समझ आता है कि जो खुदा का निज़ाम है वो बेहतर इसलिए है कि वो इंसानियत के लिए बना हुआ है, ना किसी के कोई प्रॉफिट मेकर के लिए बना हुआ है, ना किसी डिक्टेटर के लिए बना हुआ है। यानी आप फिलोसॉफिकल लेवल पे इन चीज़ों को एनालाइज करें। जब उसको नैरो कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर ये होता है, पाकिस्तान के, ओ भाई वही की हम जब बात करते हैं वो एक यूनिवर्सल चीज़ इस तरह हवाले से है कि अंबिया की तारीख है, हज़ारों साल से है, दुनिया के हर खत्े में आए। आप एनालाइज करें कि जब भी वही के मैसेज को अप्लाई किया गया तो इंसानियत का कितना भला हुआ। जब उसे डिपार्ट किया गया, उसमें करप्शन लेके आई गई, बाइबल को चेंज किया गया अपनी अकल के मुताबिक, तौरात को चेंज किया गया अपनी अकल के मुताबिक, तो उससे इंसानों के लिए क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। बहस इस लेवल पे होनी चाहिए। सारी बात को आप खींच जान के 2-4 वाकयात पाकिस्तान पे उसको रिड्यूस कर दें, वी आर क्लियरली वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। अल्लामा साहब, आप भी मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और हमारे पास कम वक्त है, तो अगर हम ज़ाहिर है इस किस्म के फ़िक्री मौज़ूआत किसी एक प्रोग्राम में 30 मिनट के प्रोग्राम के अंदर तो हम समेट नहीं सकते, मगर सिर्फ और सिर्फ हमारा ये एक वो रहा है कि हम कम से कम माशरे में कुछ बहसें, कुछ डायलॉग, कुछ डिस्कशंस होना शुरू हों, क्योंकि इसी के ज़रिए माशरे तरक्की करते हैं, लर्निंग एटीट्यूड क्रिएट होता है माशरे में। अल्लामा साहब, अगर हम इसको समराइज़ कर दें, अगर मैं उसी सवाल की तरफ दोबारा आ जाऊँ कि जो शुरू से बेसिकली मैं इसके ऊपर कमेंट लेना चाह रहा हूँ आपका ख़ास तौर पे, क्योंकि आप एक आलिम दीन हैं। क्या अकल और वही के दरमियान कोई तारुज़ है? अगर अकल और वही के दरमियान, फॉर एग्जांपल कुरान की किसी आयत की इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज़ाहिरी तौर पे हमें तारुज़ दिख रहा होगा अकल के साथ, तो क्या हम अकल की, यानी अक्ल सलीम की बात कर रहा हूँ, हकीकी अकल की बात
कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव अकल की बात कर रहा हूँ, मैं जुज़ई तौर पे मेरी अकल, तुम्हारी अकल या मेरी लॉजिक, आपकी लॉजिक, यानी जिस तरीके से आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कोई यूनिवर्सल लॉजिक नहीं है बल्कि कोई इंडिविजुअल लॉजिक है और सब्जेक्टिव लॉजिक है, हर किसी की लॉजिक अलग है। तो इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ, तो क्या हम हकीकी अकल को वहाँ पर तरजीह और मुकद्दम रखेंगे या नहीं, हम जो वही की ज़ाहिरी शक्ल है उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे? मनोवन। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर मैं कैसर भाई के साथ इत्तफ़ाक़ करूँगा। आपने मौजू अक़्ल और वही रखा, मुझे अक़्ल को मुकम्मल बयान करने से पहले ही बात काटते हुए आप आगे बढ़ गए। वही को अभी तक आपने बयान नहीं किया कि वही किसे कहते हैं। इब्तदाए कलाम में जब हाशिर साहब ने जुमला कहा, उठते ही ये जुमला कहा कि कोई साबित नहीं कर सकता कि वही जो है वो वही है, कोई दलील नहीं है, कुरान को आप साबित नहीं कर सकते। भाई आप आएँ, बैठें, बात करें, सिर्फ़ सवाल रेज़ नहीं करें, उठाएं नहीं, बल्कि बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो फ़कत सवालात उठाते हैं, और ये अच्छी बात है, हम इसको बुरा नहीं कहते, मगर उसको समझने की भी कोशिश करें। अपने मंझदार में न रहें, उन इश्कालात के मंझदार में न रहें, बल्कि सवालात को समझने और उसको हल करने की तरफ भी आए। कुरान मजीद तो बार बार कहता है, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जब भी तुम कोई बात करते हो तो खारजी मिसालें, मसलन ये अक्ल तजर्बी की बात कर रहे हैं। हिकमत और विजडम वाली अक्ल और है, अक्ल तजर्बी और है। एक आदमी एक चीज़ खा खा के समझ जाता है ये पानी इस्तेमाल करते हुए मुझे नुकसान हो रहा है, मोहल्ले वालों को नुकसान हो रहा है, ये मुज़िर पानी है, ये अक्ल तजर्बी से साबित होता है। वो जो हकीकी अक्ल और विजडम और हिकमत वाली बात है, जिसकी तरफ कुरान भी कह रहा है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, यानी हिकमत और विजडम और दानाई की तरफ दावत दो। और ये जब दानाई, जब कुलियात को दर करती है अक्ल, तो वहाँ पर आकर इसे एक जगह पर रुक जाना पड़ता है। मसलन उसे पता है कि कत्ल करना बुरी चीज़ है, ठीक है, अगर खुदा न खासा किसी कत्ल हो गया, अब उसके जुर्माने में क्या करना चाहिए, उसकी दियत कितनी होनी चाहिए, आया कत्ल के बदले आदमी मारा जाएगा, आया कत्ल के बदले पैसे लिए जाएंगे, आया कत्ल के बदले कुछ और मामला होगा। यहाँ पर आकर शरीयत आपको बताएगी, अक्ल आपको ये कहेगी कि जो आप पर इनाम करता है, जो आप पर नेमत देता है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब वो शुक्रिया किस तरीके से अदा करना चाहिए हमें शरीयत बताएगी। याद रखिएगा, कुरान वही वो दिया है जिस दिए के ज़रिए अक्ल को मज़ीद रोशनी मिलती है, वो मुनव्वर तर हो जाती है वही के ज़रिए। कोई भी दोनों में तसादुम नहीं है, कोई भी दोनों में यानी टकराव नहीं है, बल्कि जो अक्ल सही सालिम अक्ल, उस अक्ल की बात नहीं कर रहे जिसकी तरफ कुरान ने भी इरशाद फरमाया कि जब नफ्स आ जाए, जब ख्वाहिशें आ जाएं, तो फिर वो सही अक्ल भी, अगर एक बीमार आदमी हो तो सही पानी भी उसे कड़वा लगता है। हम यहाँ पर सही और सालिम अक्ल सलीम की बात कर रहे हैं। कुरान ने ये तमाम मबाइस किए हैं कि अक्ल सलीम किसे कहते हैं, अक्ल मरीज़ किसे कहते हैं, टेढ़ेपन वाली अक्ल किसे कहते हैं। कुरान तो ख़ुद कह रहा है कि खुदावंद मुताल बता रहा है कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम आयुन ला युबसिरून बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। कुरान कह रहा है अगर तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते तो तुम जानवर हो, बल्कि जानवर से बदतर हो। इससे बढ़कर कैसे दलील की दावत दी जाए, इससे बढ़कर कैसे नेगोशिएट की दावत दी जाए। बहुत ही उम्दा तरीके से मैं देखता हूँ कैसर भाई कितने खूबसूरत अंदाज से कलाम कर रहे हैं। जो भी मादियत वाले हैं, जो भी खुदा को नहीं मानते, जो दहरिए हैं, जो एथियस्ट हैं, वो बहस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कुरान से साबित है, उलमा किराम देते हैं। तो कहने की बात ये, चंद मुद्दा पर बात को नहीं करना चाहिए। अब एक ही नुक्ता कहूँगा, अक्ल वही से टकराती हुई चीज़ नहीं है, वही वो नूर है जिसके ज़रिए से मज़ीद अक्ल को रफ्तार मिलती है, रोशनी मिलती है, जिसके ज़रिए से वो सही से असहा चीज़ तक पहुंच जाती है। ये 2 और 2 4 की तरह है, बस ख़त्म बात।
اور وہی کو سمجھنے کے لیے، ادراک کے لیے ظاہر ہے عقل کی کاملیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس بہت ہی وسیع موضوع ہے اور اس موضوع کو ایک 30 منٹس کے پروگرام میں سمیٹنا یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہم اس موضوع کو مزید ایکسٹینڈ کریں گے، اس کے مزید پہلوؤں کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور لہٰذا تو اس کے اوپر مزید ہمیں پروگرامز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اسی قسم کے فکری موضوعات اور اسی قسم کی مختلف مکاتب فکر، مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کو ہم اپنے پروگرامز میں دعوت دیتے رہیں گے، تاکہ ایک ڈسکشن کا، ایک ڈائلاگ کا ماحول بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو۔ یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ وحی اور عقل کو سمجھنے کے لیے انسان شناسی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ انسان شناسی الہیات کے مطابق، اسلامیات کے مطابق انسان شناسی الگ ہے، اور وہاں پر جو جس انسان کو وہ شہوت میں اور خواہشات میں منحصر سمجھتے ہیں، اس انسان شناسی میں دونوں میں فرق ہے۔ بہت خوب ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آپ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخو دیجیے اجازت۔